Good morning viewers and my dear students. I Dr.Megha Choudhary welcome you all in my surgery online class. Last time we studied about the wounds. What are the wounds? We studied the definition. Then the healing process of wounds. There were 4 phases. The first was clotting. जब clotting होती है, clot formation होता है, bleeding stop हो जाती है. Then inflammation process जब इन्फ्लामेशन के अंदर जब क्लीनिंग होती है वुंड की, जब हमारे वाइट ब्लड सेल्स, इम्यून सेल्स लाइक न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस एंड मोनोसाइट्स कम एंड एनगल्फ द वायरसेस एंड बैक्टीरिया. And then we studied the proliferation phase and the maturation phase. जब नए सेल्स आते हैं, जब ब्लड वेसल्स फॉर्म्ड होती है, ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म्ड होता है, एपिथेलियलाइजेशन होती है, एपिथेलियल सेल्स आते हैं, न्यू स्किन फॉर्म्ड होती है, एंड देन स्कार टिश्यू इज फॉर्म्ड एंड स्कार टिश्यू इज देन रिप्लेस्ड बाय द न्यू स्किन. Then we studied the types of wounds yesterday, and today we will discuss about the wound management. Whenever any patient comes with a case like wound to your clinic, then how you have to manage that case. First, stop the unnecessary bleeding going on. Bleeding अगर ज़्यादा है पेशेंट की तो उस टाइम पे ब्लीडिंग को रोकना है. ऑक्सीजन देना है पेशेंट को. चेक द एयरवेज. देन गिव इलेक्ट्रोलाइट्स देना है, इंट्रावेनस फ्लूइड्स देना है, इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करना है बॉडी में. एंड देन ऑलवेज चेक द वाइटल साइंस लाइक पल्स, BP, that is the blood pressure and sugar levels. Because अगर sugar level is so much, अगर diabetic patient है तो immediate we have to give the insulin to make the sugar levels normal. अगर sugar levels elevated है तो ट्रीटमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा, इन्फेक्शन को हम रोक नहीं पाएंगे. सो वी हैव टू गिव द इंसुलिन. देन बिसाइड दिस चेक कि वुंड्स कैसे हैं. अगर इंसाइज वुंड्स हैं तो इंसाइज वुंड्स के अंदर अगर इंसाइज वुंड्स हैं तो उसी टाइम पे हमको पहले चेक करना है कि क्लीन है कि नहीं, वहाँ पे कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सेप्सिस तो नहीं है. तो अगर क्लीन वुंड है, इंसाइज वुंड है, देन वी विल गो फॉर द suturing, प्राइमरी suturing. नाउ लेट्स कंसिडर इट इज अ वुंड. इट इज अ क्लीन वुंड, इंसाइज वुंड. दिस इज द एपिडर्मिस and this is the dermis. And this is the wound. So we will bring the edges of the wounds together. In an incised wound, in a clean wound, we will do primary suturing by bringing the edges of the wound together. So we will go for primary suturing. Suturing के बाद में ये edges पास में आ जाएंगी. This is the epidermis and this is dermis. This is epidermis. So suturing के थ्रू ये edges closed हो जाएंगी, wound will get closed और healing process will get start. The healing process will start by primary intention in this type of wounds. जो incised wounds हैं, incised wounds जो sharp object से हुए हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से हुए हैं, दैट आर क्लीन वुंड्स, तो उनमें हमें प्राइमरी सूचरिंग करनी है. इसके अंदर जो प्राइमरी हीलिंग है वो प्राइमरी इंटेंशन के थ्रू होगी एंड एपिथेलाइजेशन. थ्रू एपिथेलाइजेशन एपिथेलियल सेल्स विल फॉर्म्ड एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ स्कार टिश्यू. स्कार टिश्यू विल बी लीनियर सपल एंड linear scar tissue will be formed in the case of incised wounds. Then second is then check अगर wounds incised नहीं है, clean wounds नहीं है, वहाँ पे edema present है, clean है wounds but there is presence of inflammation there. तो inflammation के टाइम पे हम कभी suturing नहीं करेंगे. We have to wait for inflammation to get settled down. जब inflammation चली जाएगी we will give anti-inflammatory medicines, तो वो सप्रेस कर देगी इन्फ्लामेशन को, एडिमा को सप्रेस कर देगी, सेटल डाउन कर देगी. देन वी विल डू primary this suturing
delayed primary suturing after waiting for edema to get settled down. Now जो प्राइमरी सूचरिंग है जो क्लीन वुंड्स में होती है वो विदिन 6 आवर्स के अंदर हो जाती है, एंड जो डिलेड प्राइमरी सूचरिंग है वो डिपेंड करती है up to 2 days also we can wait till the edema gets settled down, then delayed primary suturing is done. So always remember कि कभी भी इन्फ्लामेशन के टाइम पे टांके नहीं लगाने हैं, कभी भी सूचरिंग नहीं करनी है at the time of edema and inflammation. Then second is healing by second intention, that is secondary healing, that is second intention. उसमें हमें secondary suturing करनी है. सेकेंडरी सूचरिंग के अंदर जब वुंड्स बहुत ही डीप है, बहुत ही ज़्यादा टिश्यू लॉस हो चुका है, बहुत ही डेप्थ में है वुंड्स, लाइक इन केस ऑफ एनी क्रश इंजरी और डिवाइटलाइज्ड इंजरी और पंक्चर्ड वुंड्स, और लाइक प्रेशर सोर्स जैसे पिलोनाइडल एब्सेस हो गया, या कोई जैसे ये पिलोनाइडल एब्सेस है या प्रेशर सोर्स है जहाँ पे बहुत डीप में है वुंड, तो वहां पे पहले हमें क्लीनिंग करनी है. वी हैव टू एक्सरसाइज दैट सेप्टिक एंड दैट नेक्रोस टिश्यू आउट. लिबरल एक्सीजन के थ्रू वी हैव टू टेक आउट दैट डिवाइटलाइज्ड टिश्यू आउट. तो इसकी पहले क्लीनिंग करनी है. जैसे अगर एक वुंड है, ये ब्रॉड है, बहुत ज्यादा टिश्यू लॉस हो गया है एंड देयर इज इन्फेक्शन, देयर इज एब्सेस फॉर्मेशन, या कोई भी ऐसी चीज प्रेजेंट है जैसे कोई ग्लास प्रेजेंट है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट अननेसेसरी प्रेजेंट है, तो वी हैव टू फ्लश ऑल दिस थिंग्स आउट बाय एक्सीजन, लिबरल एक्सीजन. सो वी हैव टू क्लीन द वुंड्स फर्स्ट. देन एजेस आर वेरी फार, वी कैन नॉट ब्रिंग देम टुगेदर बाय सूचर्स. बहुत ही दूर दूर है, जैसे हम उनको क्लोज नहीं ला सकते सूचरिंग से. सो वी हैव टू वेट टू ग्रैनुलेशन टिश्यू जब तक बनने लगे, वी हैव टू वेट टिल दैट टाइम. सो इट विल टेक 7 to 8 days or may take 10 to 15 days. So it is a time seeking process. One thing I forget to mention, in primary suturing जब wounds clean होते हैं, primary suturing टांके करके edges को close करते हैं, then हम wait करते हैं हफ्ते भर का, from 7 days to 10 days, then we will take out that sutures outside. और absorbable sutures हैं तो रहने देते, but in many conditions we take out the sutures. Now back to again the second type, that is secondary suturing. जब हमें करनी है जब wounds are devitalized wounds हैं, बहुत ही ज़्यादा broad wounds हैं, जब edges बहुत far है, तो हमें ग्रैनुलेशन टिश्यू को फॉर्म होने देना है. हमें क्लीनिंग करते रहना है वुंड्स को, पेशेंट को बार बार बुलाना है, क्लीनिंग करते रहना है. जो भी नेक्रोस टिश्यू है, जो भी सेप्सिस है, उसे हमें ड्रेन आउट करना है, क्लीन करना है. उसके बाद में पेशेंट को बुलाना है. एवरी टाइम वी विल कॉल फॉर पेशेंट एंड पैक करके हम भेज देंगे वुंड को. इसको क्लोज रखना है, हमें पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं करना. हम पैक करेंगे, पेशेंट को भेज देंगे, देन अगेन वी विल चेंज द पैकिंग, फिर अगेन वी विल डू पैक एंड विल सेंड द पेशेंट, एंड स्लोली यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू बनने लगेगा. जो प्राइमरी था, जिसमें प्राइमरी सूचरिंग की थी, जो क्लीन वुंड्स थे, उनके अंदर हीलिंग हो रही थी बाय द फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलाइजेशन. यहाँ पे एपिथेलाइजेशन नहीं होगी, यहाँ पे ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म्ड होगा और साथ में फिब्रोसिस होगा. कोलेजन फिब्रिन्स विल कम, सो देयर विल बी मोर फिब्रोसिस एज कंपेयर टू एपिथेलाइजेशन. ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म होता जाएगा, एंड जैसे जैसे पेशेंट नेक्स्ट विजिट पे आएगा तो जो पैकिंग हम कर रहे थे वुंड्स में वो कम होती जाएगी. जो डेप्थ है पैकिंग की वो कम होती जाएगी, क्योंकि ये जो कैविटी है ये फिल होती जाएगी ग्रैनुलेशन टिश्यू से. ये कैविटी फिल होती जाएगी, एंड वंस ग्रैनुलेशन टिश्यू इज फॉर्म्ड देन वी विल डू द सेकेंडरी सूचरिंग. तब हम सेकेंडरी सूचरिंग करेंगे. तो इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड इट टेक्स 10 to 15 days. जब ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्म्ड होता है देन वी विल डू द सेकेंडरी सूचरिंग. इसमें फाइब्रोसिस के थ्रू हीलिंग होती है. देन थर्ड इंटेंशन, ये सेकेंड इंटेंशन थी. देन थर्ड इंटेंशन, जब
हम उसके अंदर क्लोज करेंगे वुंड्स को थ्रू अ स्किन ग्राफ्ट। जब बहुत ज़्यादा मेजर इंजरी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा मेजर वुंड है, बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस या बहुत ज़्यादा टिश्यू लॉस हो गया है जहाँ पे, तो वहाँ पे हम उस वुंड को कवर करेंगे थ्रू अ स्किन ग्राफ्ट। देन ये मैनेजमेंट था। अलॉन्ग विद वी विल चेक we will look for injuries to nerves and vessels. अगर vessels and nerves injured है, then we will do suturing through a 6070 polypropylene non-absorbable suture material. Then we will look for injury to any bones. Bone fracture तो नहीं है, कोई vital organs तो injured नहीं है. Then we will treat accordingly. Then tetanus toxide will देंगे हम. tetanus toxide के अलावा हम anti tetanus globulins देंगे intramuscularly कि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, सेप्सिस स्प्रेड ना हो जाए। टू कंट्रोल दिस एंटीबायोटिक्स चलाएंगे। देन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट्स भी देंगे, ऑक्सीजन देंगे, दैट इज मस्ट, बिकॉज एनारोब्स जो है वो ग्रो नहीं कर पाते अगर ऑक्सीजन आप प्रॉपर सप्लाई कर रहे हो पेशेंट को। देन देर आर डिफिकल्टीज इन द वुंड मैनेजमेंट जब पेशेंट इज वेरी इम्यूनो कॉम्प्राइज्ड। अगर इम्यूनिटी लो है, लाइक ओल्ड एज पीपल या डायबिटिक पेशेंट या मैलिग्नेंसी इन केस ऑफ ट्यूमर्स एंड कैंसर, मैलिग्नेंसी है, एड्स है, कोई पहले से इन्फेक्शन है, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी लो होती है। देन ऐसे वुंड्स जो बहुत ज़्यादा डीप है तो वहाँ पे पेरिस्थेसिस हो सकता है। अलॉन्ग विद देयर कुड बी पैरालिसिस ऑल्सो, डिसमोबिलिटी, पेशेंट में डिसेबिलिटी हो सकती है अगर वुंड्स बहुत ज़्यादा डीप है। देन हाइपरट्रॉफिक स्कार अगर हो जाता है या किलॉइड फॉर्म हो जाता है तो कोलेजन सिंथेसिस जो है वो बिगड़ गया, क्योंकि हाइपरट्रॉफिक स्कार में 3 टाइम्स कोलेजन फाइब्रिल्स बन रहे हैं एंड किलॉइड में 20 टाइम्स, तो अल्टर्ड फंक्शन हो रहा है कोलेजन फाइबर्स का, तो जो प्रॉपर स्कार फॉर्मेशन है वो नहीं हो रहा। तो दिस आर द डिफिकल्टीज ड्यूरिंग द मैनेजमेंट ऑफ वुंड।